Assalamu alaikum dear students. How are you all? Hope you are all fine. Students, this is the summary of Zoom Maths online class. Today the topic which we are going to discuss, that is the BODMAS. Order of operations, DEMAS. Now first of all, let us discuss that what is DEMAS and what are the uses of DEMAS. DEMAS rule is followed when multiple arithmetic operations are there in given problem like addition, subtraction, multiplication and division. It tells that they should be performed in order of division, multiplication, addition and subtraction. It means that DEMAS rule is followed when multiple arithmetic operations. What are the multiple arithmetic operations? We discussed the arithmetic operations in our previous lectures, that what is arithmetic operation. So tell me that what is arithmetic operation? Arithmetic operations are the addition, subtraction, multiplication and division. These four basic operations are called the arithmetic operations. Take clear? Then it tells that they should be performed in order of DEMAS. When it means when there is in the questions the multiple signs means different signs are involved in the questions, so we use the DEMAS rule. Means okay, first of all that we solve the addition, then do the multiplication, then addition and at the last we do the subtraction. इसका मतलब ये हम इन ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. हमने मल्टीपल डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो हैं वो सॉल्व कर लिए थे. हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन किया, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन हमने डिवीजन किया था. ये फोर ऑपरेशंस हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए थे. अब नाउ इन दिस एक्सरसाइज ये सारे के सारे जो ऑपरेशंस हैं ये सारे एक ही टॉपिक में एक ही क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं. ठीक है, तो जब भी ऐसा हो कि ये सारे डिफरेंट ऑपरेशंस या मोर देन वन डिफरेंट साइन आर इन्वॉल्व इन अ क्वेश्चंस, मोर देन वन डिफरेंट साइन आर इन्वॉल्व इन अ क्वेश्चन, सो वी यूज़ दिस रूल, DEMAS रूल. DEMAS रूल्स मीन्स कि आपने उस क्वेश्चन में इन्हीं साइंस के अकॉर्डिंग जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है. इन द क्वेश्चंस फर्स्ट ऑफ ऑल वी डू द डिवीजन, देन डू द मल्टीप्लिकेशन, देन डू द एडिशन एंड एट द लास्ट वी डू द सब्ट्रैक्शन. इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम अपने एक्सरसाइज को क्वेश्चंस को फिर सॉल्व करते हैं. क्लियर हो गया? नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज. Now this is the exercise 1.4 page 32 question number 1, that solve the following by using DEMAS rule. अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है किस रूल को फॉलो करते हुए? DEMAS रूल को फॉलो करते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. क्लियर? द क्वेश्चन नंबर 1 इज 8 × 14 / 7 - 10. अब नाउ लुक इन दिस क्वेश्चन, वी हैव मोर देन वन डिफरेंट साइन. हमारे पास थ्री डिफरेंट साइंस आ गए हैं. ठीक है, सो हम ऐसा तो नहीं पॉसिबल ना कि फिर मल्टीप्लिकेशन को पहले फर्स्ट वी सॉल्व द मल्टीप्लिकेशन, देन वी डू द एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. ठीक हो गया? सो अकॉर्डिंग टू रूल, DEMAS रूल, हम इस रूल के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो 8 × 14 / 7 - 10. In the solution column or in the rougher column, first of all we mention the DEMAS. हम DEMAS को mention करेंगे. Now check in the question, is there any division? D stands for division, M stands for multiplication, A stands for addition and S stands for subtraction. So check in this question, is there any division in this question? Yes, we have the division. Yes, we have the division between 14 and 7. अब किन दो नंबर्स के बिटवीन डिवीजन है? 14 and 7. सो वी डिवाइड दैम, हम इन्हें डिवाइड कर लेंगे. सो आप देखें कि मैंने यहाँ पर एक बैंड बना दिया है, मीन्स कि हम इसको पहले सॉल्व करेंगे. ठीक हो गया? अब इन द सोल्यूशन कॉलम आई डिवाइड द 14 / 7. डिवीजन हमने लास्ट टॉपिक में किया था. फर्स्ट नंबर ऑलवेज बी द डिविडेंड विच इज़ रिटन इनसाइड द डिवीजन हाउस एंड सेकेंड नंबर बी द डिवाइजर विच इज़ रिटन आउटसाइड द डिवीजन हाउस. नाउ रीड द टेबल ऑफ डिवाइजर that it becomes 14 or less than 14 or nearest to 14. ठीक हो गया? So 7 1s are 7, 7 2s are 14. So ये तो 7 2s are 14 पे फिनिश हो जाता है. क्लियर हो गया? Now what's the answer? ये जो मेरे पास ऊपर टॉप पे क्वोशंट, दिस इज कॉल्ड द क्वोशंट. जो क्वोशंट में लिखा जाता है दिस इज द आंसर. ये हमारे पास क्या हो जाता है? आंसर ऑफ दिस डिवीजन. इस डिवीजन का ये 2 आंसर हमें मिल गया. क्लियर? अब यहाँ नेक्स्ट स्टेप में देखें. इन द नेक्स्ट स्टेप आई राइट द 8 एज इट इज़, बिकॉज अभी मैंने इस 8 को देखे कोई बैंड नहीं लगाया था, कुछ नहीं किया था.
सो राइट द 8 एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन साइन एज इट इज़। जो आपने बैंड लगाया बनाया था एग्जैक्ट below this band, exact below this division, write down the answer of this division. So 14 divided by 7 की division का आंसर क्या था? 2. So I write the 2 here and then minus 10. Clear हो गया? Then now check in this solution column, is there any multiplication? M stands for multiplication. Is there any multiplication? Yes, we have. Multiplication 8 multiply 2. Make a band there. हमने इसको band बनाया. Now 8 2s are 16 minus 10. Now, is there any addition in this question? No, I don't have any addition in this question. So, cross the addition and then at the last subtraction. Yes, I have subtraction. So, subtract them. 16 minus 10 which is equals to, हम यहाँ minus कर लेंगे. So, I got the answer 6. This is my answer of this question. Is that clear? Okay, this is question number 2 is the same as the first question. Let's do the third part. अब third part को हम देखें इधर अगर, so 25 divided by 5 plus 6 divided by 2. Okay, now check in this question. I have 2 times division sign in one step. मेरे पास एक ही step में 2 times division का sign आ गया है. ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे? अपने डिमास रूल को ही follow करेंगे. Is there any division? Yes, ma'am. I have 2 times division in one step. सही, तो मैंने दोनों डिविजन्स को वन टाइम में ही बैंड बना देना है. देखें 25 डिवाइड 5 इसको बैंड बनाया, प्लस लीव द साइन ऑफ एडिशन 6 डिवाइड बाई 2 इसको बैंड बना दिया. क्लियर हो गया? नाउ इन दोनों को एट अ टाइम अपने सोल्यूशन कॉलम में डिवाइड कर लेंगे. सही, 5 5s are 25. वी गॉट द आंसर 5. मुझे इन दोनों के डिवीजन का आंसर क्या मिला? 5. मैं पहले इसके साइन का आंसर लिखूंगी. इस सोल्यूशन इस डिवीजन का आंसर मैं यहाँ लिख लूँगी. आई राइट द आंसर 5 हेयर एंड 6 डिवाइडेड बाई 2. 2 3s are 6. So I got the answer 3. Write the 3 in the next one. ठीक हो गया, मैंने साथ साथ आंसर लिखे हैं. क्लियर? नाउ what I have, is there any multiplication in this question? No. Addition? Yes, I have the addition 5 plus 3. So when I add them 5 plus 3, I got the 8. I got 8. So 8 is the answer. Okay ji, now in this question 45 divided by 5 plus 7 multiply 11 minus 12. Okay, 45 divided by 5 plus 7 multiply 11 minus 12. So again I write the demas on the solution column. Check the division. Yes, I have the division. So I do the division first. हमें division को सबसे पहले solve कर लेंगे. ठीक है, so I have 45 divided by 5. 45 written inside the division house and 5 will be the divisor. Read the table of 5 that it becomes 45 or the less than 45. So 5 9s are 45. I got the answer 9. So I write the 9 here. मैं 9 को यहाँ लिख लूँगी. क्लियर हो गया? प्लस 7 मल्टीप्लाई 11 माइनस 12. ओके जी, मैंने यहाँ क्या लिखा था? 9. 9 के बाद आई हैव प्लस साइन. सो what's the second operation? Multiplication. So multiplication को ढूंढेंगे. Where's the multiplication sign? The multiplication sign is between the 7 and 11. ये साइन कहीं भी आगे पीछे हो सकते हैं. ठीक है, जहाँ ये साइन होगा आपने पहले उन्हीं दोनों नंबर्स को सॉल्व करना है. ये साइन जो आप डिवीजन है ये लास्ट में भी आ सकता है, मिड में भी आ सकता है और स्टार्ट में भी आ सकता है. बट वी सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस डिमास रूल. सो वी डू द मल्टीप्लिकेशन. अब 7 11s आर. देखिए मैंने नेक्स्ट स्टेप में 9 को एज इट इज़ लिखा बिकॉज मैंने अभी 9 के साथ और कोई प्रोसेस नहीं किया. प्लस साइन एज इट इज़. Below the 7 multiply 11 because I am going to do the multiplication. Below this 7 multiply 11 I write the answer of this one, that is 77 minus 12. Now next one is addition. I do the addition. So 9 plus 77. इधर हम इनको ऐड कर लेंगे. So 9 plus 7 16 and 7 plus 1 8. I got the answer 86 of this addition. अब addition हो गई. Now at the last step I do the subtraction. तो मैं यहाँ क्या कर लूँगी? 86 minus 12. I do the subtraction. 6 minus 2 4. 8 minus 1 7. The answer will be 74. Okay जी, the last step of this question of this exercise is 48 multiply 3 minus 102 plus 15. अच्छा जी, अब इन क्वेश्चन में भी देखें. I write the demas on the top of the solution column. Is there any division in this question? No, I don't have any division, so cross the division. Is there any multiplication? Yes, I have. 48 multiply by 3. I do the multiply. मैंने इनको multiply किया, so I got the answer of 144 of
दिस मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, अब नेक्स्ट में देखेंगे मेरे पास 102 + 15। अब ये क्वेश्चन बेटे आपने ज़रा केयरफुली होके देखना है कि वेन एवर वी हैव द माइनस साइन फर्स्ट द एडिशन ऑफ एनी अदर साइन, जो भी साइन हमारे पास होता है वो उसके साथ के नंबर का होता है। ठीक हो गया। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट स्टेप है एडिशन। अब मेरे नंबर आया है 144 - 102। ये जो सब्ट्रैक्शन अगर कभी भी आपके पास इन द डिमास क्वेश्चन सेंटर में आ जाता है, ठीक है, वेन एवर द माइनस साइन कम्स इन द सेंटर ऑफ द क्वेश्चन, सो मैं इसको क्या करूँगी, देखें ब्लॉक में इनक्लोज किया और इसको मैं एट द लास्ट लेकर आ जाऊँगी। इस स्टेप में देखें मैंने कुछ सॉल्व नहीं किया। आई राइट द 144 + 15 - 102। मैंने जस्ट इस 102 को लास्ट में मेंशन कर दिया। ठीक है, सिर्फ इनकी प्लेसमेंट को चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले एडिशन करना था। अब हर नंबर के साथ पहले उसका साइन होता है। इसके साथ था प्लस, इसके साथ था माइनस। सो यहाँ पर अगर मैं इनको सॉल्व करती हूँ तो मेरे पास आंसर में मिस्टेक आ जाती है। ठीक है, तो मैं इस माइनस के साइन को लास्ट में लेकर आ जाऊँगी। क्लियर? सो मैं पहले इन दोनों को ऐड कर लूँगी। 144 + 15, आई ऐड देम, आंसर इज़ 159। अब ये लास्ट में 102 आएगा। ठीक है, माइनस साइन हमेशा हमारे पास लास्ट में आएगा और अगर कभी आपके पास क्वेश्चन में मिड में आ जाए देन आप उसको आगे ले आएँ। इसका आंसर लिखेंगे, दैट इज़ द आंसर एंड दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।